Welcome students in biology class. Today we describe a very important topic, that is the infertility. It is one of the major aspect of reproductive health. A large number of couple all over the world are infertile. ठीक है, तो मेन रीज़न यह टॉपिक लेने का यही है कि लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इनफर्टाइल होते हैं, मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस यंग वंस. So how can they adopt? Okay. So today we start the topic, that is the infertility. What is the infertility? The inability to conceive or produce children, even unprotected sexual cohabitation is called infertility. Okay. A biological inability है which are cannot produce young ones. Clear? What is the reason for the infertility? There are many reasons for this. This reason may be physical, immunological or even physiological. क्लियर? और इस बेस पर गर्ल्स को दोषी देना कि बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, ठीक है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि मेल दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. हो सकता है मेल में भी इनफर्टिलिटी हो, मेल कैन नॉट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, इसके कारण भी इनफर्टाइल होते हैं. तो जो दोष मरा जाता है औरतों पर वो गलत होता है कि यह बाज हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है मेल दैट इज आल्सो इनफर्टाइल हो सकते हैं. क्लियर? सो सम कॉमन कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स. सम इनफर्टिलिटी जो कॉमन विच अगर इन केस ऑफ मेल, जिसके कारण मेल इनफर्टाइल होते हैं. पहला है लो सीमेन क्वालिटी. जो सीमेन होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती. मीन्स दे कैन नॉट हेल्दी, दे कैन नॉट flattened inside the oviducts, or they cannot move because there is the unhealthy. Okay. Second one, oligospermia, means low sperm count. If there is very less number of sperm and they cannot reach at the particular place where the reproduction occurs, so that is also cause the infertility. थर्ड वन, एजोस्पर्मिया, अब्सेंस ऑफ स्पर्म. कुछ लोगों में स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं होता, उसको हम एजोस्पर्मिया बोलते हैं. दैट इज क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन, सेक्सुअल डिसफंक्शंस. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दे कैन नॉट वेल डेवलप्ड, मीन्स दे कैन नॉट प्रोड्यूस द गैमेट्स, or some there is problems. Okay. So that is also caused the infertility in case of male. Next one, cryptorchidisms. What is the cryptorchidisms? The testes are very sensitive to temperature. If they do not descend into the scrotum prior to adolescence, that is cryptorchidisms, they will be stop producing sperm that lead to infertility in males. ठीक है, इसके कारण स्पर्म का प्रोडक्शन रुक जाता है. दैट इज क्लियर? सो दिस इज द सम कॉमन causes of infertility in case of males.
Some common causes of infertility of female, that is also showing in case of female. First one is the polycystic ovarian syndromes. This syndrome in which that is the ovary that is synchronized, reduced. Okay. So first one is the polycystic ovarian syndrome. Second one, डैमेज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब. जो फैलोपियन ट्यूब है वो ब्लॉकेज हो जाए. ब्लॉकेज होने से क्या होगा, गैमेट का ट्रांसफर नहीं होगा, गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा. दैट इज क्लियर. थर्ड वन, एज रिलेटेड फैक्टर्स. एज रिलेटेड फैक्टर मीन्स देर आर सम फैक्टर्स which occur in case of body of females, means just like they cannot contain the regulation of the menstrual cycles. ठीक है, hormonal effects, that is also causes the infertilities. Next one, uterine problems. जो uterine wall है उसमें इन्फेक्शन होना, उसमें प्रॉब्लम होना, जिसके कारण फर्टाइल होने के बाद भी एम्ब्रियो वहाँ पर डेवलप नहीं होता, अटैच नहीं हो पाता. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज द प्रीवियस ट्यूबल लाइगेशंस. ठीक है, यंग स्टेज में ही यदि ट्यूब ब्लॉकेज हो जाए, सो दैट इज ऑल्सो कॉजेज द इनफर्टिलिटी ऑफ females. So there is some common process which are infertility that is showing in case of female. So how can they are treatment them, such type of female or male? When corrective treatments are not possible in certain cases, a special technique called assisted reproductive technology, means ARTS, are used to help couple in having children. ठीक है, तो ART प्रोसेस यूज किया जाता है. इन ART there are different process. ART क्या है? These are the application of reproductive technology to solve infertility problem. ये infertility problem को solve करता है. Some important technique are given here, just like first one is in vitro fertilization or test tube baby program. Okay, तो what case of in vitro fertilization, IVF, इसमें क्या होता है? It is a technique for initiating the fertilization process outside the body, female body, followed by the embryo transfer, in which the embryo placed inside the uterus with the intention to stabilize pregnancy. ठीक है, इसमें क्या होता है? बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है. इन विट्रो कंडीशन मीन्स लेबोरेटरी कंडीशन में किया जाता है. फर्टाइल होने के बाद जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है यूटेरस वॉल में. इन IVF मेथड, ovum from the wife or female donors and the sperm from the husband or male donor are collected and induced to form a zygote under simulated condition in vitro, means that is fusion outside the from body in laboratory condition. It was also termed as test tube baby program. इसको test tube baby program के नाम से भी जानते हैं. As the initial process is carried out in laboratory. Zygote or early embryo with 8 blastomere is then transferred inside the body of female for further development. Fertilization के बाद जब zygote 8 ब्लास्टोमियर का बन जाता है, ठीक है, तब उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है inside the female body for the development. This is called the embryo transfer. इसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कहते हैं. AT मीन्स एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. द वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज लुइस जॉ ब्राउन. जो सबसे पहला डेवलप किया गया था टेस्ट ट्यूब बेबी, दैट इज़ द लुइस जॉय
Brown was born on 25th July 1978 in Oldham, Lancashire, England में. Okay. In India, the first test tube baby was कुमारी हर्षा. जो इंडिया में फर्स्ट डेवलप किया गया है वो कम हर्षा के नाम से जानते हैं इसको, या कुमारी हर्षा. शी वॉज बोर्न ऑन 6 अगस्त 1986 एट KEM हॉस्पिटल मुंबई विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा. दिस इज द फर्स्ट इंडियन टेस्ट ट्यूब बेबी, कुमारी हर्षा. दैट इज क्लियर. ओके. सेकेंड प्रोसेस है जिप्ट एंड IUT. जिप्ट क्या होता है? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. और IUT का मतलब इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर. तो व्हाट इज द जिप्ट कब करते हैं? व्हेन द 8 cell ब्लास्टोमेयर स्टेज एम्ब्रियो ऑब्टेन बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब. द प्रोसेस इज टर्म जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. ठीक है, इसी को जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करते हैं. जब जाइगोट ट्रांसफर किया जाता है और किस कंडीशन का होता है वो 8 cell स्ट्रक्चर का होता है. एंड व्हेन द जाइगोट इज with more than 8 cell, blastomere stage is placed directly into the lining of uterus to complete its further development. It is termed as intrauterine transfer. और जब जाइगोट 8 सेल से ज़्यादा का हो, 8 सेल ब्लास्टोमेयर स्टेज से ज़्यादा का हो, तो उसको डायरेक्टली यूटेरस वॉल से अटैच कर देते हैं जहाँ पर उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है. इस तरह के प्रोसेस को हम इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर कहते हैं. दैट इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट वन, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. बिफोर वी डिस्कस अबाउट द जिप्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इन दिस embryo are formed when the fusion of gamete takes place within the female body. This could also be used such transfer to assist those female who cannot conceive. ठीक है, यदि कोई फीमेल है जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो दूसरे के द्वारा गैमेट को यूज किया जाता है. A developing embryo is implanted in the uterus of another female. और यदि उसके बॉडी में डेवलप नहीं हो पा रहा है एम्ब्रियो तो उसके गैमेट को ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे के बॉडी में, दूसरे फीमेल के बॉडी में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है जाइगोट को. अ वुमेन हुज सब्स्टिट्यूट्स आर टेक्स द प्लेस ऑफ रियल मदर टू नर्स द एम्ब्रियो आर कॉल्ड सेरोगेट मदर. इसको हम सेरोगेट मदर कहते हैं. ठीक है, जिसमें मेल का गैमेट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की तरफ फर्टाइल करके जाइगोट डेवलप करके इंसर्ट किया जाता है और डायरेक्टली मेल गैमेट को इंटर कर दिया जाता है. दैट इज क्लियर. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस हियर इज द गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. जिप्ट, द ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इज ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा. ठीक है, इसमें क्या आता है? ओवम को कलेक्ट किया जाता है डोनर से, क्योंकि जिसमें प्रोड्यूस ओवा नहीं होता उसमें इसको ट्रांसफ़र करते हैं. बट कैन प्रोवाइड अ सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट. ठीक है, और उसके बॉडी में सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराते हैं, कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहाँ पर फर्दर डेवलप करता है. दिस टर्म एज द गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र. मीन्स इसमें गैमेट को ट्रांसफ़र किया जाता है दोज mother in which they cannot produce the ova, that is transfer. They obtain the ova from another girls. Okay, next one is the intracytoplasmic sperm injection, ICSI. In this, a single sperm is carefully injected into an egg using a microneedles
It is beneficial in case of male infertility where sperm count is low. ठीक है, जिस मेल में स्पर्म का काउंट बहुत कम है, क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है, उसमें यह बहुत बेनिफिशियल। इसमें क्या करते हैं, केवल एक मेल गैमीट को लेकर के केयरफुली डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द एग सेल। ठीक है, डायरेक्टली उसमें इंजेक्ट कर देता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट होता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, दैट इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, AIT. In AIT, the semen is collected either from the husband or the healthy donor and then artificially introduced into the vagina or into the uterus, ठीक है, ऑफ द फीमेल। या डायरेक्टली हस्बैंड का या डोनर या हेल्दी पर्सन का गैमीट लेकर के डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया जाता है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन केस वेयर मेल partners are unable to inseminate the female due to very low sperm count in the ejaculate। ठीक है, या उस कंडीशन में यूज़ करते हैं जिसमें पार्टनर, जो मेल पार्टनर है, यदि उसमें इंसेमिनेट, जो इंसेमिनेशन है या सीमेन है, दैट इज रिलीज वेरी लेस अमाउंट और नॉट हेल्दी, उसमें इसका यूज़ करते हैं। ऑल दिस टेक्निक require extremely high precision, specialized person and expensive instrument। ठीक है, स्पेशलाइज लोग ही इसको करते हैं या उनके थ्रू कराया जाता है। Therefore there are only few such center in the country and hence their benefits are obtained only by limited person। ठीक है, इसके कारण पूरे इंडिया में इसकी सेंटर बहुत कम है, जिसके कारण बहुत कम लोग इसका यूज़ कर पाते हैं। दैट इज क्लियर। ओके, सो दिस इज द सम प्रोसेस इन विच इनफर्टिलिटी कपल्स दैट इज ऑफ्टन दे आर ऑफ्टन फर्टाइल्स। ओके, ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब माई चैनल्स, like, share and press the icon bell. Thank you.